This particular video, we will see the solution of NEET 2024 biology question paper with the explanation. So we will start with question number 1. Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of. Lecithin किस चीज़ का example है? It is the example of phospholipids. ये direct NCERT में diagram दिया हुआ है lecithin का, उसी के bracket में लिखा हुआ है phospholipid. आप देख सकते हैं यहाँ पे phosphate present है. It is a phospholipid. Next, question 102. How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of carbon dioxide fixed in the Calvin cycle? Calvin cycle में कितने एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ATP और कितने NADPH चाहिए? देखिए NCERT में लिखा है Hence for every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. So the correct answer here is option number 4, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. Next question, Hind2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of. कितने बेस पेयर होते हैं जिस recognition sequence को Hind2 पहचानता है? जो Hind2 का जो recognition sequence है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? It is written in NCERT here. It was found that Hint2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. So the correct answer is option number 2. Question 104. In the given figure, which component has thin outer walls and highly thickened inner walls? कौन सा ऐसा structure है जिसकी outer walls thin है और inner walls thick है? So outer walls, ये जो guard cells होती हैं उसमें outer walls तो thin होती हैं और जो inner walls होती हैं these are thick. So it is basically the structure number 3, which are the guard cells. So the answer is option number 1. In NCERT you can see they are the guard cell, they are dumbbell shape and they have highly thickened here. The outer walls of guard cells are thin and the inner walls, that is towards the stomatal pore, are highly thickened. Next question. The cofactor of the enzyme carboxypeptidase. Carboxypeptidase का cofactor क्या है? It is zinc. तो जहाँ चैप्टर एंड होता है उससे पहले जहाँ एंजाइम टॉपिक एंड होता है देयर यू कैन सी एग्जाम्पल जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैराग्राफ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट. एक सेल है, एक सेल से की कैपेसिटी जिससे कि वो पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले देखते हैं राइजोपास. राइजोपास इज बेसिकली अ ब्रेड मोल्ड. इस ये हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं. राइजोपास 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं. देन वी हैव अस्टिलागो. अस्टिलागो इज स्मट फंगस. पक्सीनिया इज rust fungus and agaricus is mushroom. So the correct answer is option number 1. NCERT में भी देख लीजिए, यहाँ लास्ट लाइन में बेसिडियोमाइसिटीज का लास्ट पैराग्राफ में मेंशन्ड है. सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. BT toxins are insect group specific and are coded by gene CRY1AC. This statement is correct. जो BT toxin इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है और वो CRY1AC के द्वारा कोड किया जाता है. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. BT टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. यहाँ तक तो ठीक है. इन Bacillus thuringiensis, however, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH. Acidic pH नहीं, यहाँ alkaline pH होता है of the insect gut. तो ये वाला statement हो गया incorrect. So the correct option is option number 3. Statement 1 is true but statement 2 is false. ये देखिए BT toxin के बारे में यहाँ mention भी किया हुआ है. BT toxins are insect group specific. The toxin is coded by gene CRY1AC named CRY. और ये लिखा alkaline pH. alkaline pH जब मिलता है BT toxin को inactive toxin को तो वो activate हो जाता है.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? डायरेक्ट एनसीईआरटी से, जहाँ एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स को डिफाइन किया गया है, देयर ओनली इट इज रिटन दैट इट इज सेट टू बी एक्टिनोमॉर्फिक. एग्जाम्पल मस्टर्ड, दतूरा, chili. These three are the examples of the actinomorphic flowers. So the correct answer is option number 1, datura. Next question, the type of conservation in which the threatened species are taken out. थ्रेटेड स्पीशीज है, उसको हमने उस जगह से बाहर निकाला है फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट था, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड. उसको दूसरी जगह हम रख रहे हैं. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग एक्स situ conservation. Here you will see ex situ conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special settings. For example, zoo, botanical gardens, wildlife safari parks. Now see which is the correct option. In situ conservation तो ये हो नहीं सकता. सेमी कंजर्वेटिव मेथड भी नहीं है, क्योंकि ये हमने उसमें पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एग्जाम्पल नहीं है. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 111. आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. नहीं, ये तो एक्वेटिक प्लांट है. इसका तो फ्लावर्स को कलरफुल और होने की ज़रूरत ही नहीं है. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. दिस इज करेक्ट. In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Yes, mucilaginous covering उसको protect करके रखती है. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. Yes, it is correct. ताकि वो पानी में आसानी से swim कर सके. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. This is also correct. Pollen grains passively, actively नहीं, passively, water current के according वो float करते हैं पानी में. So the correct answer is option number 4. B, C, D and E statements are correct. Next, ये देखिए वेलिस्नेरिया लिखा हुआ है. वेलिस्नेरिया which is grows in fresh water. Here in Vallisneria, the female flowers reach the surface of water by the long stalk and the male flowers are released on the surface of water. They are carried passively by water current. ठीक है, passively water current के द्वारा वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं और फ्लावर को, वेलिस्नेरिया के फ्लावर को कलरफुल और नेक्टर की ज़रूरत नहीं है. Next, the lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by action of. क्या चीज़ सेल के अंदर अगर बैक्टीरियल मीडियम के अंदर अगर लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो वो सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे जाएगा? क्या चीज़ अलाउ करती है? So if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease. This is the particular enzyme which allows the movement of lactose. So the answer is option number 3. Next question, question number 113. Clostridium butylicum, very easy, butylic acid. Next, option B, Saccharomyces cerevisiae. It produces ethanol. Trichoderma polysporum. It produces cyclosporin A. Streptococcus, it produces streptokinase. So the correct answer here is option number 3. Next, the equation of Verhulst-Pearl logistic growth is dn by dt is equal to rn into k minus n upon k. इसमें k किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी. k इज़ द कैरिंग कैपेसिटी. और r क्या होता है? स्मॉल r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ये होता है स्मॉल r. ये रॉन्ग है. सो करेक्ट आंसर इज कैरिंग कैपेसिटी. k इज कैरिंग कैपेसिटी. Next, oxygen is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as oxygen. अब देखो grass क्या है? Grass is a monocot plant. ठीक है, तो हमने देखा था जब गिब्रेलिन्स पढ़ा था, सॉरी ऑक्सिन्स पढ़ा था, तो इट इज रिटन हियर दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स 2,4-D, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड्स. डाइकॉट वीड्स को किल करता है, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स.
So auxil is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass, that is the monocot plant. तो मोनोकॉट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन जो वीड्स हैं वो उसमें से रिमूव हो रही हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स. Next question. Identify the part of the seed from the given figure which is destined to form the root when the seed germinates. ठीक है, ये रेडिकल पार्ट है. सी पॉइंट जो है दिस इज द रेडिकल पार्ट जहां से रूट बनेगी. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. आप इसे यहाँ डायग्राम में भी देखिए. दिस इज द रेडिकल पार्ट फ्रॉम विच द फ्यूचर रूट फॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कॉलेनकाइमा इज डेड. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2, जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स. ये ठीक है. बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा टिश्यूज का जहाँ मेंशन किया हुआ है वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा देखिए. स्क्लेरेन्काइमा होता है डेड टिश्यू, ना के पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है. जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम. ये देखिए, जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. These are regarded as major causes of biodiversity loss. ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कॉज है, को एक्सटिंक्शन भी कॉज है, म्यूटेशन इज नॉट द कॉज, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द कॉज, माइग्रेशन इज नॉट द मेजर कॉज. तो मेजर कॉज जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो है ए, बी एंड डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. देखिए, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, alien species invasion and co-extinction, these are the major causes of biodiversity loss. Next, question number 119. Which of the following is not a criterion for classification of fungi? अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जब हम पढ़ते हैं तो किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है उसको. इट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह का उसमें स्पोर बना है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज, किस तरह की उसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनी है. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम करेक्ट है. ये एक आई शुड से इट इज अ क्राइटेरियन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट द क्राइटेरियन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज द क्राइटेरियन एंड फ्रूटिंग बॉडी इज द क्राइटेरियन. तो यहाँ पे एक आंसर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to ovary from the given figures A and B. इस फिगर को पहले हम यहाँ एनसीईआरटी में देख लेते हैं. पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस, सबसे पहला जो फिगर है दिस इज हाइपोगाइनस कंडीशन. देन बी एंड सी, दिस एंड दिस, दे आर पेरीगाइनस कंडीशंस. एंड डी ऑप्शन जहाँ पे ओवरी नीचे होती है बाकी फ्लोरल पार्ट सब ऊपर होते हैं, दिस इज द एपिगाइनस कंडीशन. तो यहाँ हमें डायग्राम में ये दोनों कंडीशंस शो की गई हैं जहाँ एक लेवल में ओवरी और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. सेम लेवल पे हुए हैं ओवरी एंड बाकी फ्लोरल पार्ट्स. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज पेरीगाइनस एंड दिस इज ऑल्सो पेरीगाइनस. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वॉज रिलीज्ड बाय. एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट कौन रिलीज करता है? इट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, GEAC होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है. WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्श टाउन, ये भी नहीं. सो करेक्ट आंसर इज IUCN. द IUCN red list documents the extinction as well as it releases the list of endangered species. Next question. What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? एक एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक जीन, सिर्फ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया जाता है तो उसका क्या फेट होता है? So the piece of DNA would be able to multiply itself independently of the progeny. Independently तो multiply कर ही नहीं सकता. It may get degenerated
सॉरी, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। हाँ, वो इंटीग्रेट हो सकता है, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इट मे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। जैसे जैसे होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी मल्टीप्लाई, जो एलियन जो पीस ऑफ डीएनए है इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इनकरेक्ट। ये अगर होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तभी वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। Question 123, which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? A. Out of one pair of factors, one is dominant and the other is recessive. Correct. Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. ये तो गलत हो गया। Alleles तो express करती है और अपने आप को F2 में भी express करती हैं। Factors occurs in pairs in normal diploid plants. ठीक है, factors pairs में ही होते हैं। The discrete यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, ये भी ठीक है। जो यूनिट पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। हम उसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, जिसको हम जीन्स कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, A, C, D and E only. Next question. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example. ये वाला question last year आया था कि malonate को कौन competitively inhibit करता है? The answer was succinic dehydrogenase. अब इसकी language change करके इस साल question दिया है inhibition of succinic dehydrogenase by enzyme malonate. ये किस चीज़ का example है? It is the example of competitive inhibition. Example, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used in control of bacterial pathogens. ये NCERT से direct statement है. Next, 125, formation of the interfascicular cambium from fully developed parenchyma cell. ये parenchyma cell है, let's say, इससे बना interfascicular cambium. So ये किस चीज़ का example है? This is the example of de-differentiation. It was पहले ये differentiated tissue था, differentiated cell था, इससे क्या बना? de-differentiation हुआ और interfascicular cambium बना. So this is de-differentiation. de-differentiation में यहाँ पे mention भी किया हुआ है, de-differentiation, for example, formation of meristems, interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated parenchyma cells. Next, spindle fibers attached to kinetochores. ये क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर से जो अटैच्ड है, उससे स्पिंडल फाइबर कब अटैच होते हैं? दे अटैच इन द मेटाफेज स्टेज. NCERT you will find under metaphase. Here you can see spindle fibers attached to kinetochores of the chromosome. Next question, tropical regions show greatest greatest level of species richness because जो tropical regions होती हैं वहाँ पे species richness ज़्यादा क्यों होती है? So let's see the options. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. Yes. Hence, more time was available for species diversification. Yes. Tropical environments are more seasonal. No, no, ये less seasonal होते हैं. Tropical का environment same रहता है, constant रहता है, less seasonal होता है. So this is incorrect. More solar energy is available in tropics. Correct. Constant environment promotes niche specialization. Correct. Tropical environments are constant and predictable. This is correct. So the correct option here is option number 1. NCERT में देख लेते हैं. Here they have written they have remained, the speciation is generally a function of time unlike temperate regions, जिसमें टेम्परेट रीजन्स में ग्लेशिएशन होता है, लेकिन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो इसलिए उनको ज़्यादा टाइम मिला है स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन के लिए. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है लेस सीजनल होते हैं एंड प्रेडिक्टेबल होते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज, और वहाँ पे नीश स्पेशलाइजेशन भी होता है. ओके, now let's move to the next question. Chromosomes become gradually visible under light microscope during the leptotene stage.
द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज, अब पहले इसको हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। डिप्लोटीन में देखते हैं क्या होगा, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover. These except structures are called chiasmata. So ये correct हो गया। The beginning of the diplotin stage is recognized by dissolution of the synaptonemal complex. ये हमने यहाँ पर देखा है dissolution of the synaptonemal complex. So this is also correct. So the answer is both statement and statement 1 and 2 are correct. Next question, nucleolus. Nucleolus में क्या होता है? It is the site for active ribosomal RNA synthesis. Centriole is organization, it has organization, इस तरह से organization होता है like a cartwheel. Okay, 9+2 arrangement देखने के लिए मिलता है। Leucoplast, leucoplast storing, it is meant for storing the nutrients, and Golgi apparatus जो होता है, it is the site of formation of the glycolipids. So the correct option here is option number 1. Next, bulliform cells are responsible for inward curling of leaves in monocots. This is the correct answer. Protecting the plant from stress? No. Increased photosynthesis in monocots? No. Providing large spaces for storage of sugars? No. यहाँ देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा है bulliform cells, when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curls inwards to minimize water loss. जब पानी कम होता है तो बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो अलाउ करती हैं लीफ को कर्ल करने के लिए, कर्ल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन, पिंक फ्लावर्ड मतलब ये कंडीशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, क्या क्या फिनोटाइप हमें देखने के लिए मिलेगा, हमें कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। प्लांट यहाँ पे होगा रेड और इस कंडीशन में प्लांट होगा, फ्लावर्स होंगे पिंक। सो वी विल बी एबल टू सी रेड फ्लावर एज वेल एज द पिंक फ्लावर। ओनली रेड फ्लावर्स नहीं, ओनली पिंक फ्लावर्स नो, रेड पिंक एज वेल एज वाइट फ्लावर्स नो। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए एनसीईआरटी में भी यहाँ पे क्रॉस दिखा के बताया गया है, आर कैपिटल आर से रेड फ्लावर्स, स्मॉल आर से वाइट फ्लावर्स एंड कैपिटल आर स्मॉल आर से अगर ये अलीलिक कंडीशन होगी सो द फ्लावर इज गोइंग टू बी पिंक इन कलर। तो ये चीज़ आपको बेसिकली याद रखनी पड़ेगी अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स, डीएनए में 3 रीजन्स होती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। These are with respect to upstream and downstream end. ठीक है, तो आप यहाँ प्रमोटर सबसे पहला सीक्वेंस आप अपस्ट्रीम पोजीशन पे प्रमोटर, फिर डाउनस्ट्रीम अगर चलें तो वी हैव द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड देन वी हैव द टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो इट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड terminator. The correct answer is option number 4. Next question, in a plant black seed color इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर, तो ये दोनों कंडीशंस डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस, आपने टेस्ट क्रॉस पढ़ा है, टेस्ट क्रॉस में जब आपने टॉल और डॉफ प्लांट का जब हमने क्रॉस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कैपिटल टी इस कंडीशन में प्लांट टॉल था और डॉफ के लिए स्मॉल टी, लेकिन अगर हमें ये पता करना था कि टॉल प्लांट कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है या हिटोजाइगस टॉल है, तब हम उसका क्रॉस कराते थे स्मॉल टी के साथ, मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ऐसी अगर कंडीशन है जहाँ पे दोनों कंडीशंस डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रही है और हमें ये पता लगाना है कि होमोजाइगस कंडीशन है या हिटोजाइगस कंडीशन है, तब हम उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। ध्यान से सुनिए, रिसेसिव पेरेंट के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन, के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत भी नहीं होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ATP इज रिक्वायर्ड एंड NADPH इज रिक्वायर्ड. So the correct option is option number 3, C, D and E only. Next, match the following two or more alternative forms of a gene. उसको हम कहते हैं allele. Cross of F1 progeny with homozygous recessive parent, ये हमने अभी देखा है, इसको हम कहते हैं trest cross. Cross of F1 progeny with any of the parent, उसको हम bracc cross कहते हैं. Name of the chromosome set in plant, that is called as ploidy. So the correct option here is option number 3. Next, the DNA present in the chloroplast. Chloroplast में जो DNA होता है, अब वो कैसा होता है? It is circular, ठीक है, and it is double stranded. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA, अपना जो DNA होता है, that is circular and double stranded. Next, रॉबर्ट मे ने क्या कहा था? रॉबर्ट मे ने कहा था he gave the global species diversity is about 7 million. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने बताया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताया था उन्होंने. पॉल एलरिच ने रिविट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी एंड डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, रोज क्या है? रोज में हमें देखने के लिए मिलता है पेरीगाइनस फ्लावर. पी प्लांट में हम देखते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. इस तरह से पी प्लांट होता है ना, उसमें इस तरह से प्लेस्ड होते हैं जो मटर के दाने होते हैं. सो वी हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन. कॉटन में हम देखते हैं कॉटन हैज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और मैंगो का जो फ्रूट होता है इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1. Next, which of the following statement is correct regarding the process of replication of E. coli? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. द DNA डिपेंडेंट, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ रेप्लिकेशन की बात हो रही है. द DNA डिपेंडेंट DNA polymerase catalyzes the polymerization in one direction, that is 3' to 5'. ये तो डायरेक्शन ही गलत हो गई, दिस इज इनकरेक्ट. द DNA डिपेंडेंट RNA polymerase catalyzes polymerization in one direction, that is 5' to 3'. यहाँ देखो डायरेक्शन तो इन्होंने ठीक लिखी हुई है, लेकिन यहाँ इन्होंने RNA polymerase लिखा है. RNA पॉलीमरेज की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात हो रही है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है. RNA पॉलीमरेज यहाँ पे रॉन्ग हो गया, सो दिस इज इनकरेक्ट. द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज विल कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5' डायरेक्शन. ये इनकरेक्ट हो गया. सिर्फ एक ही डायरेक्शन है होती है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? इट इज द 5' to 3' डायरेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटेलाइजेज polymerization in 5' to 3' direction. Question 140. Identify the correct description about the given figure. ये किस चीज़ की फिगर है? This is basically a wind pollinated plant inflorescence. Wind pollinated plant का ये inflorescence है. It is showing that the flowers have well exposed, ये जो है ये stamens हैं इसके, और ये well exposed हैं ताकि वो pollen grain को trap कर सके. या इसमें से स्टेमन की बात हो रही है ना, ताकि इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स है वो इजीली जैसे ही विंड ब्लो करे वो इजीली बाहर आ जाए. नेक्स्ट, साइट्रिक एसिड साइकिल. अब इसमें हम देखते हैं कहाँ होती है साइट्रिक एसिड साइकिल. इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ग्लाइकोलाइसिस, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ETS, which is the electron transport system, it takes place in the inner mitochondrial membrane, and the proton gradient, it is created in the intermembrane. जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसे. ए साइट्रिक एसिड साइकिल, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है. ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है. और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ क्रिएट होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. FeO5C के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Asexual reproduction usually takes place by biflagellate zoospore. This is correct. Sexual reproduction is by oogamous method. ये ऐसा नहीं होता है, oogamous मेथड से नहीं होता है, सिर्फ oogamous मेथड से
Stored food is in the form of carbohydrates, which is either mannitol or laminarin. This is correct. The major pigment found are chlorophyll A, C, and carotenoids and xanthophyll. This is correct. Vegetative cells have a cellulosic wall, usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. This is also correct. So option number 3 is the correct answer. Next, 143. In an ecosystem, if NPP, net primary productivity, अगर 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, तो जीपीपी क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव थर्ड ट्रॉफिक लेवल की क्या होगी? तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल की जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी किससे के कंपैरिजन में? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के कंपैरिजन में. सो करेक्ट आंसर हियर इज करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3, 10x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. नेक्स्ट, GLUT4. GLUT4 enables glucose transport into the cells. Insulin क्या है? It is a hormone. Trypsin क्या है? It is the enzyme. And collagen है intercellular ground substance. So the correct option here is option number 1. Question 145. Identify the step in TCA, tricarboxylic acid cycle, which does not involve oxidation of the substrate. तो ये जो थर्ड स्टेप होता है जहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है सबस्ट्रेट का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, इन C3 plants some oxygen binds to the rubisco, hence carbon dioxide fixation is decreased. This is correct. Statement 2. In C4 plants, mesophyll cells show very little photo respiration, while bundle sheath cells do not show. ये incorrect हो गया. Do not show photo respiration. This is incorrect. So the correct option is statement 1 is true, but statement 2 is false. फिर से आ गया, मैच द फॉलोइंग. मोनाडाल्फस कंडीशन किस में देखने के लिए मिलती है हमें? चाइना रोज में, जिसमें बहुत सारे स्टेमन्स एक ही बंडल फॉर्म करते हैं. आपने डाइसेक्शन भी किया होगा हिबिस्कस का, उसमें देखा होगा कि एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में स्टेमन्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. देन डायोडेल्फस कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है पी प्लांट में, जिसमें 2 बंडल्स में होते हैं स्टेमन्स. पॉलीडेल्फस कंडीशन मिलती है सिट्रस में. एंड एपिफिलस कंडीशन, जिसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटल से अटैच्ड होता है, ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है लिली प्लांट में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. जैकब एंड मोनाड, फ्रैंकॉइस जैकब एंड जैक्स मोनाड, इन्होंने बताया था लैक ऑपरॉन. हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड. एंड मेसल्सन एंड स्टाल, they gave the semi-conservative mode of DNA replication. So the correct option here is option number 2. Next, which of the following are fused in somatic hybridization involving 2 varieties of plants? प्रोटोप्लाज्म को, जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का, 2 सेल्स का, उसको फ्यूज करते हैं एक साथ. कौन से प्रोसीजर में? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप. ये यहाँ से क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है गिब्रेलिक एसिड से. ये वाला आया हुआ था क्वेश्चन यहाँ से. इंटरनोड इलॉन्गेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? गिब्रेलिन्स. ओके, ये वाला स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. अब देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन. शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, स्प्रेइंग शुगर क्रॉप with sugarcane crop, with which of the following plant growth regulators increases the length of the stem, thus increases the yield? So sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stems. Spraying sugarcane crop with gibberellins increase the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. So the correct option here is option number 2, gibberellin. Next question, following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart. क्या क्या pathway है? सबसे पहले action potential, यहाँ डायग्राम से एक बार देख लेते हैं. SA नोड, action potential यहाँ जनरेट होता है, फिर वो बंडल AV बंडल के थ्रू ट्रैवल करता है into the AV node and then it travels further and then finally into the Purkinje fibers. So the correct sequence is
It starts from the SA node, then it goes travels through the to the AV node, then AV bundle, then it goes to the bundle branches, and then finally to the Purkinje fiber. So the correct answer here is option number 1. Next question. In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structures called anal cerci. Anal cerci कहाँ present होता है? 10th segment में present होता है. Last year जो question आया था वो था anal styles जो है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन ऐसा है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करता है. दैट वाज एनल स्टाइल्स. अब की बार एनल सर्काई से क्वेश्चन पूछ लिया. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द 10th सेगमेंट्स. सो इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट bears a pair of jointed filamental structures called the anal cerci. Next, the flippers of the penguin. Penguin is a bird and dolphin is a mammal. तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? बर्ड और मैमल के जो फ्लिपर्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं दे आर एनालोगस ऑर्गन्स. और एनालोगस ऑर्गन्स किस चीज़ को शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब में देखिए क्या क्या है? इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है. यूट्रिन फंडस इज नॉट द पार्ट ऑफ fallopian tube. So here uterine fundus is the correct answer. Isthmus is a part, ampulla is a part, and infundibulum is a part of the fallopian tube. Next, given below are some stages of the human evolution. Arrange them in correct sequence, past to recent. सबसे पुराना वाला हमें लिखना है. तो सबसे पहले आया था होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, देन निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, एंड फाइनली जो सबसे मॉडर्न है दैट इज होमो सेपियंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ADCB. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? ये कैटेगरीज दी गई है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एनसीईआरटी में अलग अलग हार्मोन किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. स्टीरॉयड का एग्जाम्पल देखो, कॉर्टिजोल, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन. और ग्लूकागॉन किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन. इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. कॉर्टिजोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये तीनों स्टीरॉयड हार्मोन्स है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, अल्फा 1 एंटीस्ट्रिप्सिन कहाँ देखा था हमने? एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है. क्राई 1 AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है. क्राई 1 AC कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है. एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने देखी थी ADA डेफिशिएंसी में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Following are the stages of cell division. Choose the correct sequence of stages from options. Following are the stages of cell division. Choose the correct sequence. अच्छा, sequence को देखना है हमें. So let's see. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो सेल है वो सेल साइकिल में अगर हम देखें G1S G2M ये स्टेजेस होती हैं. तो सबसे पहले जो सेल होती है वो गैप 1 फेज में रहेगी. फिर उसके बाद सिंथेसिस फेज के बाद that is the S phase, then cell will enter into the G2 phase, and then finally it will enter into karyokinesis and then cytokinesis. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. G1 S, G1 phase, S phase, synthesis phase, G2 phase and then M phase. और M phase में पहले karyokinesis होता है, फिर cytokinesis. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? में हमने देखा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अफेक्ट करती है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को. जेनेटिक ड्रिफ्ट भी अफेक्ट करती है. जीन माइग्रेशन भी अफेक्ट करता है, लेकिन कांस्टेंट जीन पूल डज नॉट अफेक्ट. ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स? कौन कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? रिमोटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. And systemic lupus erythematosus SLE, this is also the autoimmune disorder. Muscular dystrophy incorrect है. Myasthenia gravis incorrect है. Gout incorrect है. Correct answer is option number 2. Next, match the following. Again typhoid.
टाइफॉइड किससे होता है, क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसका, बैक्टीरिया। लेशमेनियासिस प्रोटोजोआ से होता है, रिंगवर्म फंगस से होता है, और फिलारियासिस फिलारियल वर्म से होता है जो कि एक नेमाटोड है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2. Okay, now let's move to the next question. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, टाइडल वॉल्यूम पूछा था, टाइडल वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब की बार देखते हैं क्या पूछा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी इज ERV प्लस RV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इट इज the expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume, and inspiratory capacity क्या होती है, it is the tidal volume plus inspiratory reserve volume। ये सारे जो formulas हैं NCERT में जो given है ये तो सारे आपको याद करने ही हैं, हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम ट्राइजोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की डाउन सिंड्रोम में। अल्फा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम में डिफेक्ट, बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, assertion reason, FSH acts on ovarian follicles in female and Leydig cells in male. No, this is incorrect. Growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being. This is correct. So assertion is false, but reason is true. Again match the following. Pleurobrachia, it is the example of टीनोफोरा। रेडुला हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, मोलस्का में। स्टोमोकॉर्ड होता है हेमिकॉर्डेटा में, और एयर ब्लैडर हमें देखने के लिए मिलता है ऑस्टिकथीस में, जो कि बोनी फिशेज होती हैं। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, डायकाइनेसिस इट इज कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था ये। पेकाइटीन में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जाइगोटीन में साइनॉप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एंड लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक द थिन थ्रेड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसी की फुल फॉर्म पूछी है। TI प्लाज्मिड इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। नेक्स्ट, कोकेन मिलता है इराइथ्रोजाइलम कोका से, उसका फुल नेम अगर याद होगा तो इसी से हम याद रखते हैं, कोकेन। हीरोइन इज बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावर सोमनिफेरम। मॉर्फिन कब देते हैं, इट इज गिवन इन, इट इज एन इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर होता है ये सर्जरी में। एंड मैरिजुआना इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, which one of the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template। ये एक टेम्पलेट है, इस गिवन टेम्पलेट पे अगर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज काम करेगा, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होके जो सीक्वेंस mRNA का जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। 5 प्राइम डायरेक्शन होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी। टी की जगह आएगा ए के साथ आएगा यू, क्योंकि टी नहीं आ सकता। आरएनए जो आरएनए है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह। सी के साथ जी, टी के साथ सॉरी ए के साथ, सी के साथ जी, ए के साथ यू। यहाँ इसको एक बार अलग लिख लेते हैं, टी ए के साथ यू, सी के साथ जी, ए के साथ यू, टी के साथ ए, जी के साथ सी, जी के साथ सी, एंड देन सी के साथ जी।
सो AUG UAC CG, AUG UAC CG, ये करेक्ट हमारा ऑप्शन है। इसमें से ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें टी लिखा हुआ है, ठीक है। AUG UACCG UUU, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पॉन्स। Pons is basically, it connects different regions of the brain. Hypothalamus, it is the neurosecretory, it has the neurosecretory cell जो कि hormones भी secrete करती हैं. Medulla, it controls the respiration and the gastric secretion. And cerebellum, it provides additional space for neurons, regulate posture and balance. Next, lipase, so इसका correct answer हो गया option number 2. Next, लाइपेस। लाइपेस क्या होता है? जो लिपिड्स पे एक्ट करता है। सो लाइपेस, इट बेसिकली इट ब्रेक्स द ग्लाइकोसिड, इट ब्रेक्स द एस्टर बॉन्ड्स। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करेगा तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ये ब्रेक करता है। प्रोटीएस जो प्रोटीन का को पे एक्ट करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करता है। और अमाइलेज जो है वो जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, it acts on the glycosidic bonds. So the correct option here is option number 3. Which of the following is not a natural method? Coitus interruptus natural, periodic abstinence natural, lactational amenorrhea natural, Volts, it's a barrier method. So the correct option here is option number 4. Next, 3 types of muscles are given A, B and C. Identify the correct matching pair along with their location in the human body. तो इसमें हमें लोकेशन, टाइप और लोकेशन हमें मैच करना है। तो हम देखते हैं ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है एंड दिस इज द कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में, ये देखो ये मैच कर रहा है, ट्राइसेप्स में होती है। स्मूथ मसल्स स्टमक में होती है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, ट्राइसेप्स हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती है। एंड कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. Which of the following statements is incorrect? A bioreactor provides optimal growth conditions for achieving the desired product. ठीक है. Most commonly used reactors of stirring type. ठीक है. इसमें दो टाइप के बायोरिएक्टर्स हैं, स्टरिंग टाइप और स्पास्ट टाइप। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है स्टरिंग टाइप। थर्ड देखते हैं, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स। नहीं, स्मॉल स्केल नहीं, लार्ज स्केल जब हमें कल्चर बनाना होता है तब हम बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। So bioreactors have an agitator system, oxygen delivery system and foam control system. This is correct. So the correct option here is, जो incorrect statement है, it is bioreactors are used to produce small scale bacterial cultures. Next question, assertion reason. Breastfeeding during initial periods of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby. ये तो ठीक है, क्योंकि कोलोस्ट्रम जो होता है it is rich in antibodies. So colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance. ये भी ठीक है. So the correct answer is option number 1. Assertion and reason is correct and R is the correct explanation of assertion. Next, which of the following factors are favorable for formation of oxyhemoglobin? ये देखते हैं NCERT में, all favorable for formation of oxyhemoglobin whereas in the tissue where low पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर, नहीं फेवरेबल कंडीशंस यहाँ दी हुई हैं। देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PO2, लो PCO2, लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। दीज आर द फैक्टर्स जो कि फेवरेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया हाई PO2, लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से। हीमोजोइन जो है केमिकल कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। वाइडाल टेस्ट होता है इन टाइफॉइड के केस में, और एलर्जी होती है डस्ट माइट से। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट देखना है हमें। एनिलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, ये ठीक है। पॉरीफेरेंस आर सीडोसीलोमेट, नो, ये तो ए सीलोमेट्स होते हैं। एस्केल्मेंट्स आर ए सीलोमेट्स, नो। प्लैटीहेल्मिन्स आर सीडोसीलोमेट्स, नो. So the correct option here is option number 2A only.
Next, non-medicated IUD, it is the Lips loop. Copper releasing IUD, multiload 375. Hormone releasing IUD, LNG 20. And implants, progestogens is the example of implant. So correct option here is option number 4. Next, in the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. No. The proximal PCT, the PCT is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption. No, this is also incorrect. So both the statements are incorrect. अब ये हमें प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिया गया है एंड वी आर आज व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई. ये हमने देखा था एनसीईआरटी में. एक्स इज द ओरी सीक्वेंस, जहाँ से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द फॉलोइंग डायग्राम shows restriction sites in E. coli cloning vector PBR322. Find the role of X and Y genes. So the X gene is responsible for controlling the copy number of the linked DNA and Y for protein involved in the replication of the plasmid. So the correct option here is option number 2. Next, exoneme. एक्सोनीम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजेला. कार्टवील पैटर्न हमें सेंट्रियोल में देखने के लिए मिलता है. इस तरह से अभी पहले भी पीछे भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन. क्रिस्टा, क्रिस्टा हमें देखने के लिए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में. इस तरह से जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं, इट इज थ्रोन, द इनर लाइनिंग इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड एज क्रिस्टा. और सैटेलाइट्स हमें देखने के लिए मिलता है क्रोमोसोम में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, टेरोफिलम. टेरोफिलम जो होती है, इट इज द एंजल फिश, मिक्जीन इज हैग फिश, प्रिस्टिस इज सॉ फिश, एक्सोसीटस इज द फ्लाइंग फिश. सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2. आपको मेरे चैनल पे आपको ये सारी फिशेस के आपको डायग्राम की एक वीडियो मिलेगी. बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें सारी फिशेस के आपको डायग्राम विद कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम्स आर गिवन. नेक्स्ट, फिब्रस जॉइंट. फिब्रस जॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है स्कल में, जो कि डोंट अलाउ द मूवमेंट. ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, जिसमें हमें कौन सा हिंज नहीं, उसमें भी जॉइंट ही पूछा था कोई सा. कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है होता है वो पूछा गया था. नाउ इस साल का क्वेश्चन देख लेते हैं. कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? एडजेसेंट वर्टिब्री में होता है, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है. हिंज जॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द नी, इफ इट हेल्प्स इन लोकोमोशन. एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में, जो कि रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4. Next, statement 1. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. This is correct. The hymen is torn during the first coitus only. नहीं, only लिख दिया ना. No, क्योंकि hymen may be torn during some sports activities, during some vigorous sports. So this is incorrect statement. So correct answer is statement 1 is true, but statement 2 is false. Next question, statement 1. Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different लिख दिया इन्होंने, different resources cannot coexist indefinitely. ये गलत हो गया. यहाँ पे सेम होता तो करेक्ट स्टेटमेंट होता. According to Gauss's principle during competition, the inferior will be eliminated. ठीक है. This may be true if resources are limiting. ये ठीक है. So statement 1 is false, but statement 2 is true. Next, the structure used for storing of food. फूड स्टोर करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्रॉप. रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट. ऑप्शन नंबर 2, that is the gastric ceca. Ring of 100 to 150 yellow colored thin filaments at junction of midgut and hindgut, that is called as the Malpighian tubules. And the structure used for grinding the food, that is the gizzard. So the correct option, कॉकरोच के केस में हम देखेंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. So correct answer here is option number 1. The following are the statements about non-chordates, and we have to find out. The pharynx is perforated by the gill slits. Notochord is absent.
CNS is dorsal. So non-chordates में central nervous system dorsal and heart is dorsal if present. This is correct. Notochord absent होती है. This is correct. Post-anal tail is absent. This is correct. और ये दोनों incorrect option है. तो हमें यहाँ पे बताना था correct option कौन सा है. So the correct option is B, D and E only with respect to non-chordates. Next, choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. तो juxtamedullary nephron are located in columns of Burtini? No. Renal corpuscles of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of renal medulla? No. Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla? Yes. And juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons? No. So correct option here is option number 3. First statement, the cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. ठीक है ये. The brain stem consists of medulla oblongata, pons and cerebrum. No, this is incorrect. So the correct answer is statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Next, bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. Yes. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. This is also correct. So the correct option here is statement number 1, that is both statement 1 and 2 are correct. Regarding catalytic cycle of the enzyme action, select the correct sequential steps. जो कैटालिटिक साइकिल होती है एंजाइम्स में, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट के साथ, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है. सबसे पहले E+S, फिर ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद में केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर ब्रोकन, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट आर ब्रोकन. उसके बाद में क्या होता है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट जो है E+P प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है, यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है एंड फाइनली फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर. अब ये एंजाइम फ्री हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अब ये किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज option number 1. Next, identify the correct option A, B, C, D with respect to spermatogenesis. ये hormonal control of spermatogenesis हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है FSH. फिर B वाला यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ होता है LH, it acts on the Leydig cells. FSH, it acts on the Sertoli cells. और यहाँ पे फैक्टर जो रिलीज करती है सर्टोलाइज सेल्स वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, मीजोजोइक एरा में क्या आए थे, मीजोजोइक एरा में बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे. प्रोटेरोजोइक एरा लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सीनोजोइक एरा फिश एंड एम्फीबिया, पेलियोजोइक एरा mammals. So the correct option here is option number 4. wait गलत हो गया. मीजोजोइक एरा में आए थे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, प्रोटेरोजोइक में लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सीनोजोइक एरा में मैमल्स थे, मैमल्स डोमिनेंट थे, और पेलियोजोइक जो एरा है उसमें थे फिशेस एंड एम्फीबियन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, इट इज सीन इन द गॉबलेट मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी. देन कंपाउंड एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन द गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. मल्टीसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने के लिए मिलती है. एंड एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, RNA पॉलीमरेज 3, ये लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन कि RNA पॉलीमरेज 3 किस किस चीज़ के को ट्रांसक्राइब करता है. सो RNA पॉलीमरेज 3 इट ट्रांसक्राइब्स SNRNA एंड tRNA. टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कब होता है, जब रो फैक्टर आके अटैच हो जाता है RNA पॉलीमरेज से.
स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SNRNPs, और टाटा बॉक्स जो होता है वो प्रमोटर सीक्वेंस होता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, RNA पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5 srRNA एंड SNRNA। ये लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन 2023 नीट में। नेक्स्ट, as per ABO blood grouping system, the blood group of father is B plus and mother is A plus, father B plus, mother A plus और बच्चा क्या है O plus। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? बच्चा O plus किस कंडीशन में हो सकता है? जब उसके पास स्मॉल आई हो। और स्मॉल आई कब पॉसिबल है? जब एक स्मॉल आई फादर से आई हो और एक स्मॉल आई मदर से आई हो। तो दूसरा यहाँ पे अलील कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल बी, और यहाँ क्या क्या होगा? यहाँ होगा कैपिटल ए। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हो गया आई बी आई ए एंड स्मॉल आई, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो ए ओनली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पी वेव किसको डिनोट करती है? ये लास्ट ईयर भी आया था इस टॉपिक से क्वेश्चन। इट डिनोट्स द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS complex, depolarization of ventricles. T wave, it is seen when there is repolarization of ventricles, and TP gap, it denotes that the heart muscles are electrically silent. ओके, TP गैप ये NCERT में गिवन नहीं है, इन तीनों को मैच करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पी वेव एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, T wave it represents repolarization, represents return of ventricles from excited to state of repolarization. Next, mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelles, ये तो ठीक है। inner membrane of mitochondria is relatively less permeable, no, ये ज़्यादा permeable होती है as compared to chloroplast। यहाँ पे NCERT में देखो of the two मतलब mitochondria chloroplast में से the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। जो क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है एज कंपैरिजन टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, इसमें हमने देखा था एनसीईआरटी में, देखते हैं। एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर हो जाता है तो प्रोट्रूडिंग ऑफ आईज हो जाता है, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? जब थायराइड हार्मोन लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ। क्रेटिनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ हम ड्वार्फिज्म में भी देखते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन के कम प्रोड्यूस होने पे होता है। ये वाली स्टंटेड ग्रोथ और वो वाली स्टंटेड ग्रोथ में कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज क्रेटिनिज्म, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड से होता है। एक्रोमेगाली हमने पढ़ाई है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो अडल्ट स्टेज में तो एग्रोमेगाली हो जाता है। तो देखते हैं, एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, हाइपर सिक्रीशन of thyroid hormone and protruding eyeballs. Acromegaly, excess secretion of the growth hormone. Cushing syndrome, ये NCERT में नहीं है। Cushing syndrome, option number 1, excess secretion of cortisol, moon phase and hyperglycemia. And cretinism, hyposecretion of thyroid hormone and stunted growth। तो बाकी तीनों को आप मैच करके हम करेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं। So the correct answer here is option number 4. So with this we come to the end of the solution of 2024 NEET question paper. In my channel, in the playlist, you can check the NEET question paper solutions of last year's also, previous 5 years. Thank you.